मेरी बात सुन लो। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो पोस्ट एमबीबीएस पोस्ट इंटर्नशिप जॉब करने का सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि मतलब अलॉन्ग विद प्रिपेयरिंग फॉर द नीट पीजी एग्जामिनेशन दे कैन माइट एज वेल जॉइन समवेयर एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो वो अभी एक डाइसी सिचुएशन में है, जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कितने टाइम करनी चाहिए, कैसी जगह पे जॉब करना ज़्यादा बेटर रहेगा फॉर टू इफेक्टिवली प्रिपेयर फॉर योर नीट पीजी। सो ये उन सब लोगों के लिए ये वीडियो है, सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। सो हाई, माई नेम इज़ डॉक्टर आयुषी श्रीवास्तव and today I'll be talking about the job aspect. Mostly you work as an MO in hospitals post your internship. So I would want to talk about that, and also I would want to share it my personal experience while working in a corporate hospital. So post my internship, I shifted to Bangalore, and there I joined a very big corporate hospital. At least that's what it seemed to be. And but I had some of the worst work experiences in that hospital. So anyways, I went and gave an interview to the HOD of the emergency services department, and the interview went well. He asked me to join for the next day. So I told him that I do not have a KMC, the Karnataka Medical Council certificate. So so I told him that now that I've gotten the job, I'll apply for it. So maybe I'll join from the next week. So he said, okay, it'll take about a week, around 7 to 8 days basically. So post that you can join. So I was like, okay sir, I'll do that. So for one thing here that I would like to suggest is that if you're actually planning to do a job in a post your internship, and if you're actually interested in preparing for NEET PG along with it, and you do not want to waste your time here and there, so I would strongly suggest you to take up a job in your home state where your like the state from where your parent council is, because this task of taking an NOC from your parent council and applying for a temporary practice certificate in that state council, that itself is a very tedious and long process. It's a government process and you know how it works. So वो आपको लिटरली नंबर देते हैं, और कभी कभी आपका सारे दिन आप बैठे रहोगे, आपका नंबर नहीं आएगा, फिर वो बोलेंगे नेक्स्ट डे आओ, फिर नेक्स्ट डे आओ, एंड हर दिन कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ ना कुछ, मतलब द एंटायर प्रोसेस टेक्स अबाउट अ वीक और सो. So it's a very tedious task. It wastes a lot of your time. So I would suggest कि अगर आप पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो might as well skip that part, और अपने होम स्टेट में जहाँ से आपने MBBS करी है या जहाँ का आपका मतलब परमानेंट मेडिकल सर्टिफिकेट है, आप वहीं पे जॉब लो. So coming to this, so like around after 7 to 8 days I got my KMC and I joined the hospital. So as soon as I joined the hospital on Thursday, and on Saturday that HOD who took my interview, he had resigned from the hospital. Okay, and it was a no like service period resignation. वो उनको immediate resignation चाहिए था, तो वो like he literally resigned on Saturday and he left the hospital. So उसके बाद मतलब फॉर सम टाइम वहाँ पे कोई HOD नहीं था, तो जो रोस्टर बनाते थे वो वहाँ के कंसल्टेंट्स बनाते थे, तो उन पे आ गई वो सारी चीज़, तो वो बनाते थे. एंड टू बी ऑनेस्ट, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, लाइक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई वर्क, I literally went through or suffered so much of bias in that hospital. Basically जो वहाँ का सिस्टम था वो ये था कि मुझे सर ने बताया था on the day of interview itself कि I will have 16 duties in total in a month, in which between emergency services department and the wards it will be divided half and half. So I was like, okay sure, I'll do that. But as soon as he left, those consultants started making rosters according to their whims and fancies, और उनको जैसा भी सूटेबल लग रहा था उस हिसाब से वो बना रहे थे. फेयर इनफ. तो बट बेसिकली अगर आप चलो हाफ एंड हाफ नहीं भी बना रहे हो तो भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि समवॉट रेशियो लाइक 6:4 या वो वाला तो एटलीस्ट रेशियो रहे कि हाँ मतलब आप आधी आधी मत दो, तो मतलब 60% उधर 40% इधर ऐसे दे दो. मतलब it should be somewhat acceptable also na to us all. I worked in the emergency services department for about 7 to 8 duties. I worked in the emergency services department, and the work was pretty decent. I did not find it very hectic because it was a corporate hospital. The influx was not that high, and obviously like there were periods जब बहुत ज़्यादा influx हो जाता था, but there were times जब नहीं है ज़्यादा patients and you get time to rest and all. Rest in the sense कि you can at least sit for a while and have a coffee or something like that. बट ऑन दी कॉन्ट्री वार्ड्स में जो आपका काम था वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था. मतलब वो सारे उन्होंने बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन, तो उनके 3 फ्लोर्स थे वार्ड्स के, और वो सारे डिपार्टमेंट के वार्ड्स उन्होंने उन्हीं 3 फ्लोर्स में उन्होंने कन्फाइन कर दिए थे. और एक एमओ सिर्फ असाइन होता था उन तीनों फ्लोर्स के लिए, और उसको इंडिविजुअली पूरा दिन लाइक 12 घंटे या पूरी रात उसको इंडिविजुअली उन तीनों फ्लोर्स को हैंडल करना है.
राइट। तो पूरे हॉस्पिटल से जितने भी एडमिशन्स होते थे वो उन्हीं 3 फ्लोर्स में हो रहे थे, एंड टू हैंडल ऑल द 3 फ्लोर्स एंड यू नो डू ऑल ऑफ दैट स्टफ, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। तो मतलब ये एक कॉमन पैरामीटर था वहाँ पे कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट बहुत रिलैक्स और चिल है और वार्ड्स बहुत हेक्टिक है। तो मुझे भी लगा कि हाँ फेयर इनफ, मतलब आप आधी ड्यूटीज़ इधर कर लो सो दैट यू नो इट्स रिलैक्सड ऑल्सो, एंड आधी ड्यूटीज आप उधर कर लो थोड़ी मेहनत वाला, ठीक है। तो बट देन रोस्टर बनते थे, एंड वो जो कंसल्टेंट्स थे वो उन लोगों को यू नो जो उनको अच्छे लगते थे, या वो एमओज जो उनको पसंद नहीं थे, या वो एमओज जो एकदम जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया था, लाइक मैं थी और एक और थी, तो हम लोगों को वो क्या कहते हैं, वो ज़्यादा वार्ड की ड्यूटीज़ देते थे, और वो एमओज जो उनको पसंद थे उनको वो इमरजेंसी में अपने साथ रखते थे। सो लिटरली वन ऑफ दोज एमओज वो लाइक पर्सनल फेवरेट, कुछ तो बायस था भाई उसके टूवर्ड, उनमें से एक दो का, जो एटलीस्ट स्पेशली जो रोस्टर बनाती थी जो मैम, उनको वो एमओ बहुत पसंद थी। तो वो क्या करती थी, लिटरली देवर मंथ्स, लाइक 2 months स्ट्रेट, शी गेव मी 16 ड्यूटीज, मतलब ऑल ऑफ माई ड्यूटीज इन टू द वर्ड्स, just to give her all 16 duties in the emergency department. And also I was one of those who was very submissive, and I never really complained about it, या मतलब complained in the sense कि मैंने कभी उस चीज़ को question नहीं किया, या मैं कभी जा करके मैंने कभी बोला नहीं कि हाँ आप मुझे इमरजेंसी में दे दो या कुछ भी, वो जो भी मुझे देते थे हाँ 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 ठीक है मैं कर लूँगी, तो मैं इन दैट सेंस ज़्यादा बोलती नहीं थी। सो दे वर लाइक लिटरली आई फेल्ट लाइक गेटिंग एक्सप्लॉयटेड आफ्टर सम टाइम, बिकॉज वो 16 ड्यूटीज वार्ड्स में करना, लाइक एवरी डे आई यूज टू गेट सो एग्जॉस्टेड एंड यूज टू हैम्पर माई स्टडीज बिग टाइम। Like I was not able to, at least in those 16 days, I did not study a single page of my notes, or I was not able to study at all, because wards इतने ज़्यादा हेक्टिक थे, जितने भी OTs के लिए जा रहे हैं पेशेंट्स, OT से आ रहे हैं, जो एडमिट हो रहे हैं, इन वो जो एडमिटेड हैं उनके इश्यूज़, वो साथ सब कुछ यू हैव टू हैंडल। सो आई थिंक सो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे वहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट की ड्यूटीज़ नहीं मिलती थी, मुझे हमेशा वार्ड्स की ड्यूटीज़ मिलती थी, बिकॉज यू नो ऑफ ऑल द फेवरेटिज्म थिंग going on in the department. There was all sorts of internal politics that used to go on. One person hates the other, one consultant hates the other, one MO hates the other consultant in particular hates these MOs, एंड वाइस वर्सा। तो सब लोग आपस में एक दूसरे से कोई किसी से चिढ़ता था, कोई किसी से चिढ़ता था, एंड all of that toxicity was going on, and I could sense that from like distance that all of this is going on, and वो sort of आपको इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करते हैं, तो कि वो उनका जो ओपिनियन है sooner or later वही आपका भी हो जाए towards a certain someone। अगर वो किसी को नहीं पसंद करते तो आप भी उससे दूर रहो, एंड वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती थी। देन ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, इवन जो वहाँ पे कुछ जैसे सीनियर नर्सेस थी, सो ऑल्दो आई हैव लाइक ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, आई थिंक दे वर्क सो हार्ड फॉर द फॉर आवर फील्ड, बट सर्टन आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। वी ऑल नो व्हाट प्रोजेक्शन इज, कि अगर आपकी पर्सन आई बिलीव कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ में इशूज़ है तो यू समहाउ प्रोजेक्टेड इनटू योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, एंड वाइस वर्सा। सो ऑब्वियसली देयर वर सर्टन लाइक व्हाइल आई यूज्ड टू वर्क इन द वर्ड्स, देयर वाज दिस वेरी रूड, वेरी एरोगेंट, वेरी बहुत ही बिटर इंडिविजुअल थी, एक नर्स थी, और सो मच सो दैट वो मुझसे भी मतलब बहुत ही बिटर हो करके शी यूज्ड टू रिप्लाई, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट नॉट नो, मे बी बिकॉज ऑफ द रीजनल बायर्स कि मैं एम नॉट इंडियन थी या जो भी, मतलब मुझे टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट इवन श्योर कि वो ऐसी क्यों थी, बट शी यूज्ड टू बी रियली बेटर डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं उनसे बहुत अच्छे से और बहुत ही रिस्पेक्टफुली मैं उनसे बात करती थी, और शी मस्ट हैव बीन लाइक ऑफ द सेम एज एज मी, और मे बी ऑब्वियसली एल्डर टू मी, बट नॉट, शी वॉज नॉट लाइक कोई बहुत बड़ी लेडी नहीं थी वो, मतलब हमारे एज की थी, बट शी वॉज वेरी बेटर, ऑल्दो मैं उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती थी, बट I do not know what was the issue. So then like it really used to affect me, because वो ward में anyways like कोई MO और कोई नहीं था, कोई और doctors नहीं थे, so the only people to interact with were the nurses, और जब अगर उनमें से कोई इस तरीके का behavior रखता है या इस तरीके की vibe देता है अगर आपको, तो it does affect you somehow, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, तो मैं जाकर के डॉक्टर्स रूम में जाकर के अकेली बैठी रहती थी, मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी, या जब वो नहीं होती थी तो बाकी सिस्टर्स वर वेरी गुड, दे वेरी स्वीट टू मी, और बहुत अच्छे से बात करती थी, some of them were North Indian, some of them were from Nepal and all, so they used to talk very nicely to me and all of that. So those were the things, and then of course there were times when I used to overdo my work, I used to overdo things that I'm not
supposed to do, or maybe I am not, not that I'm not supposed to do, but maybe I'm not required to do, या वो मेरा काम नहीं है, but I still used to do it thinking कि अरे ठीक है, क्या हो गया, कर सकते हैं, क्या हो गया, but I do not, so there were times when you know दूसरे एमओज हैं तो लाइक उन्होंने कुछ फाइल वर्क छोड़ दिया, वो मुझे बोल के चले जाते थे कि हाँ ये तुम कर देना, ना हाँ हाँ बिल्कुल मैं ये कर दूँगी, आप जाओ आपको लेट हो रहा है. So I used to be like that, but once I sort of tried to do the same thing कि मतलब मेरी जैसे नाइट ड्यूटी थी एंड उस अर्ली 8 AM पे वो ड्यूटी मेरी ख़त्म होनी थी. इट वॉज 9 AM और मेरी ड्यूटी ख़त्म नहीं हो पाई थी, यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ पेंडिंग वर्क. तो एक पेशेंट का मैं वो रिव्यू नहीं लिख पाई थी, मतलब मैंने राउंड्स ले लिए थे, सारा कुछ कर दिया था, बट मैं वो लाइक हैंड रिटन नहीं कर पाई थी. तो मैंने जो नेक्स्ट टाइम होता मैंने उसको बस ये बोल दिया कि इसके आप प्लीज़ वो लिख देना, बाकी सब मैंने सब कुछ अपडेट कर दिया, सारा कुछ कर दिया. बट फॉर दैट ही लाइक लिटरली लाइक he spoke to me so badly, like he was like कि नहीं मैं क्यों करूँ, मैं मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, आप करके जाओ ऐसा. सो यू नो तो वो सारी चीज़ें तो आई डो नॉट, तो मैं उसको नहीं ब्लेम करती हूँ. बेसिकली ही न्यू कि हाँ ये उसका काम नहीं है तो वो क्यों करे. आई थिंक इट वॉज फॉर मी टू ब्लेम कि मैंने एक्सपेक्ट किया कि हाँ अगर मैं कर रही हूँ तो कोई और भी मेरे लिए सेम करेगा. नो बडी डज. इट्स अ वेरी प्रोफेशनल, इट्स अ वेरी लाइक क्रूअल वर्ल्ड एंड nobody is going to be that kind to you. And since you know it's the topic of kindness has come up, so what I would want to say is that be kind to the attendants of the patients and to patients themselves. Please be kind to them. I think as doctors we have been on both sides of the table. We have been doctors to patients and vice versa, right? So we know ki if not more, then both sides of the table has their own hustle, right? So and it's not although it's not comparable, but we can still feel what it is to be an attendee of a patient or the patient itself, so I think as doctors we can be a little kind to them, we can be a little considerate about that. It doesn't to be able to treat people and to be able to heal people out of their illnesses is a privilege, and I think we can let it be that way. So yeah, so basically my story, my point behind telling my experience is that if you are going to if you are thinking of taking up a job post your MBBS or internship, then I think there are certain things you can keep in mind while going for it. Is first, I guess that try not getting involved into the internal politics of the hospital, whatever is going on. See, basically whatever politics it is going on, basically they are between the workers who are there since a really long time or who are going to be there for a really long time. So it is not for you. I think at the end of the day you should always remember your end goal, that this is like you're not there for all of this and for all this gossip and ये सारी चीज़ें. And I think you अपने काम से काम रखने वाला चीज़ होता है ऐसी जगहों पर. ज़्यादा मतलब किसी की बुराई में मत पड़ो, किसी के ये सब चीज़ों में मत पड़ो. And do not, at least if it's in your personality then it's fine, but I do not support कि बहुत ज़्यादा किसी को बटर करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज क्या होता है कि अगर आप वो सारी चीज़ें और लोगों को इम्पैक्ट करती हैं. सो तो हाँ, तो किसी पॉलिटिक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आई डो नॉट थिंक इट्स वेरी हेल्दी व्हेन इट कम्स टू योर मेंटल हेल्थ. इट्स ऑल गुड जब किसी और के अगेंस्ट हो रहा हो, बट व्हेन इट्स यू हु इज़ गेटिंग टारगेटेड, आई डो नॉट थिंक इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. सो ट्राई नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन टू ऑल ऑफ दिस. अपने काम से काम रखो और अपना काम करके घर चले जाओ. सिंपल. और देन थर्ड व्हाट आई वुड लाइक टू टेल इज़ दैट जैसे कि मेरे साथ क्या होता था कि जो मेरे को एमओस थे, स्पेशली दोज हु वर लाइक वेरी सीनियर्स 2009 2010 बैच, दे यूज टू काइंड ऑफ बुली मी. They used to think that they were like very senior or something like that. तो भाई हॉस्पिटल में even though you are from a senior batch, even though you have more experience than me, but you are still an MO. ठीक है, आप you cannot लाइक आप मुझे बुली नहीं कर सकते. तो यू हैव टू नो दैट यू आर नॉट आंसरेबल टू योर को एमओज और वट एवर. यू आर ओनली आंसरेबल टू द HOD ऑफ योर डिपार्टमेंट और द कंसल्टेंट्स ऑफ योर डिपार्टमेंट एंड द हॉस्पिटल अथॉरिटीज इटसेल्फ. नोबडी एल्स यू हैव टू हैज़ द राइट टू कम अप टू यू एंड क्वेश्चन you and your work ethic or whatever. So you're not answerable to all of those. Do not get bullied by anyone. What I would suggest is that if you really want to work for, if you really want to prepare, thoroughly prepare for NEET PG, first I would not suggest to take up a job.
like post your internship if you're really into it and if you really want to do it, you're sure that the only thing you have for now which is like of importance to you is cracking the NEET PG exam. So I would obviously on the like primary level, I would always suggest to not take up a job. But since not being able to to just sit back at home and prepare while not having a job is one of the luxuries not everybody can afford. So I understand that it is a luxury of that your parents or your family allows you to just sit back, do not take up a job, do not become financially independent, and just आपने MBBS करी, आप वापस से घर आके बैठ गए और आप प्रिपेयर कर रहे हो. सो दैट इज़ अ लग्जरी, आई अंडरस्टैंड, और वो सब लोग को नहीं मिलती है. सो ऑब्वियसली अगर वैसा कोई सिचुएशन है, यू हैव फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटीज़, तो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज़ कि आप एक जॉब ले लो, बट ट्राई टू नॉट गो इन टू गवर्नमेंट अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू ब्रश योर स्किल्स एंड यू वांट टू हैव नॉलेज, या आपको एक्सपीरियंस चाहिए प्रॉपर अच्छा, एंड आप अभी तुरंत एकदम इंटर्नशिप से निकलने के तुरंत बाद एकदम पीजी के लिए बहुत सीरियस नहीं हो, आपको थोड़ा सीखने को चाहिए, तब तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर गवर्नमेंट. अब प्राइवेट में जाने का कोई पॉइंट नहीं है. बट इफ़ यू आर लाइक कि हाँ नहीं, मुझे टाइम चाहिए टू प्रिपेयर एंड टू फोकस ऑन NEET PG examination, तो you can go for a private hospital. But I would always suggest कि आप क्या कहते हैं, और हमेशा एक थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करो उस हॉस्पिटल का, थोड़ा सा उसके बारे में पता करो. if that hospital has a good reputation in terms of their employees का part, not in terms of their patients and all. तो आई थिंक थोड़ा बहुत अगर आप पता कर सकते हो तो वो करो. बिकॉज व्हाट हैपेंड विद मी इज़ कि जब मैंने वो हॉस्पिटल छोड़ा तो मेरी सैलरी वो हर महीने बहुत लेट देते थे. 15 दिन 20 दिन तो बहुत नॉर्मल था उनके लिए लेट देना. लाइक सपोज अगर उनको 3 तारीख को डेट है मेरी सैलरी देने की, तो आराम से 20-21 तारीख तक वो देते थे सैलरी एवरी मंथ. सो तो लास्ट के 2 मंथ्स में क्या हुआ कि उन्होंने एक पूरे महीने सैलरी नहीं दी, एंड देन 1 more month आई वर्क. ठीक, तो उसकी सैलरी, तो ऑल इन ऑल इन टोटल 2 महीने की सैलरी उन्होंने मुझे टिल दिस डेट, यू वुड नॉट बिलीव, टिल दिस डेट उन्होंने मुझे क्रेडिट नहीं करी है. एंड लिटरली द ओडेसिटी टू एक्चुअली कॉल एंड से कि हाँ हो जाएगा, इस डेट तक हो जाएगा, आज शाम तक हो जाएगा, कल सुबह तक हो जाएगा. 1 साल से ऑलमोस्ट मैं उन्हें कॉल करती हूँ, और समटाइम्स दे डू नॉट पिक अप, the HR people, sometimes they do not pick up, sometimes they just pick up the call and say, oh ma'am, I'm in a meeting, I'm stuck in a meeting, I'll just call you back. And they never call me back, obviously. So and sometimes if they do, or if they reply to the messages or the emails that I constantly send them, they do reply saying कि हाँ अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा. एंड ऑफ लेटली रादर मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही उनको, ऑल्दो आई हैव लाइक लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ गेटिंग माई सैलरी, क्योंकि अभी तक उन्होंने नहीं दी इतने टाइम में, तो ऑब्वियसली वो मुझे नहीं देने वाले. एंड आई डू नॉट नो वाई डू दे नॉट हैव द गट्स टू एक्चुअली जस्ट से कि मैम हम नहीं देंगे आपको सैलरी, या जो भी है, मतलब या वो मेरा कॉल ही ना उठाएं या मुझे ब्लॉक कर दें, वो भी वो नहीं करते हैं. दे डू पिक अप द कॉल्स ओनली टू टू प्रोक्रेस्टिनेट, टू डिले, टू जस्ट से कि नहीं हम नहीं दे सकते हैं. So in some way that's weird also, but then yeah, till this date they have not actually credited my salary of 2 months. So that is 16 plus 16, 32 duties basically. So that's very disappointing on their part, but it's okay. I mean I have lost all hopes also, and it's okay. Like मेरे parents कहते हैं कि इसको बस ऐसे देखो कि हाँ ठीक है, तुमने काम किया एंड तुम्हें कुछ सीखने को मिला, इट्स ओके. यू डिड नॉट गेट अ रिवॉर्ड एज इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर दैट, एंड इट्स ओके, जस्ट लेट इट बी. So I have, I did follow that advice, and I do not care anymore, and hence I'm making this video that even if they see, I do not care. So yeah, so these are the certain points I want you all guys who are just freshers and आप ये सब politics नहीं जानते, और आप ये सारे नए जो भी चीज़ें हैं, आप ये सारी चीज़ें नहीं जानते हो. So my point behind making this video is to let you guys know the certain facts about the work environment post your internship. Of course ये सबके साथ नहीं होता. आई एम वेरी श्योर कि बहुत कम लोगों के साथ, या रेयरली ऐसी चीज़ें होती होंगी. आई होप सो कि ऐसा होता हो बहुत कम लोगों के साथ. तो स्टिल मैं ये बोलूँगी कि आप जब भी आप जॉब कर रहे हो पोस्ट योर इंटर्नशिप, और आप सोचते हो कि अच्छा काम करेंगे और साथ में पढ़ाई करेंगे, एंड देन यू गेट स्टक इन सच सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस, या ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में यू गेट स्टक एंड इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ एंड व्हाटएवर. सो आपको गेट आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल. ट्राई टू डू certain things to avoid getting into such circumstances. So yeah, so basically that. And also अगर आप if you're girls out there who are just
trying to get into a job or are planning to take up a job post your internship. So obviously लड़कियों के लिए there is separate sort of struggles also जो इसमें add on होती हैं, और I think वो सबको पता है कि वो क्या होता है. So I think you need to be a little aware of that also, कि आप ऐसी situations में खुद को मतलब at least be careful कि हाँ आप certain situations में stuck ना हो, और you just need to be a little extra careful. So that's that. So that was my purpose behind this video. So thank you guys for supporting me so far. See you in the next video. Bye.